Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to start with concurrency control, another topic of database. So now concurrency control is a mechanism to manage the concurrent transactions or simultaneous transaction. In fact, concurrent mean at the same time. So sometimes it happens that the same data is being accessed by more than one transaction. So if two transactions are accessing some data, then there must be some mechanism to control that concurrency, that simultaneous transaction access. So if there would not be any control, then we can face many problems. और वो problems क्या हो सकती हैं जरा check कीजिए. For example, if we have no control, we have an account with balance 20,000 rupees. And in fact, this account is a joint account of Miss. यही वजह थी जो मैं चाह रहा था कि सारे आ जाते यार. चलो. So the joint account belongs to Mr. A and Mr. B. That means both can access the account, both can get the money withdrawal. So in fact, when they both are the owner of that account, then there would be two ATM cards. One ATM card will be that of the Mr. A and other will be of Mr. B. So now, if Mr. A goes to an ATM or he logs in from the uh, web application, then in that case, check. He inserts the card in the ATM and tries to withdraw money. अब वो पैसे निकलवाना चाह रहा है एक बंदा कि जी मैं चेक करता हूँ. तो अब जरा यहाँ पर देखो. Simultaneously, at that time, Mr. B inserts card in another ATM simultaneously. उसी वक्त में the other person, the other owner of that account, in fact, he also tries to get the data. If there is no control, then Mr. A says show balance. He gets the balance 20,000. उसको 20,000 रुपए दिखा दिए गए. Then after him, Mr. B uh, put his card in the machine and he launched a transaction. So his query went show balance. So he got the 20,000 rupees. Now Mr. A writes down or enters that 15,000 to be withdrawn. 15,000 वो निकालना चाह रहा है 20,000 में से. Will he get the money or not? If there is no control. मिल जाएगी फिर उसे जब कंट्रोल में है। बिल्कुल लॉजिकली ही शुड गेट दैट मनी. वेरी गुड. तो अब देखो, he asked for the 15,000, so machine checked what was the balance, 20,000, and it dispensed or it provided the 15,000 rupees. And meanwhile, Mr. B also said I want to withdraw 10,000 rupees. So now, as his interface, his software, his application has got the balance amount as 20,000, he will also get the 10,000 as there is no control. And then, meanwhile, this machine will write down the balance 5,000, but on the top of this machine will write down the balance 10,000. 20,000 minus 10,000, remaining 10,000. So now, check. We had in our account 20,000 rupees only. Here, the balance was 20,000. But there were simultaneous transactions, two transactions on the same data, 20,000. And as there was no control, so we have withdrawn 25,000 rupees out of 20,000 and still balance is 10,000. Then that means from 25,000 we accessed or we withdrawn 25 and still have 10,000, 35,000 rupees. So is it right? नो सर। No, sir, ये तो गड़बड़ है. So now we need a control, we need a mechanism that may manage the concurrent transactions. So that is why we use the concurrency control, a mechanism, a technique that can manage these kind of errors, that can manage the concurrent transactions. So now check how it manages. So now if we have same 20,000 rupees, Mr. A says, show me
balance. So as soon as he says show me balance, he gets 20,000 rupees as the balance. Now, as his transaction started, so it will get logged. As soon as he started, now this account of 20,000 rupees will be logged. So now, meanwhile, Mr. B logs in. वो साहब भी आ गए. He inserted his card and he asked show balance. So I put a question mark over here. What should happen now? Because it has been logged. Logged means, remember one thing, locking is a concurrency control technique in which we lock the data for others, lock the data for others who want to access it while one is using. So A is using, so it will be logged and it will not be available to Mr. B. So now check. This question mark was put over there to tell you that to decide what to do. As this resource is locked, so यार इस चीज से मैं तुम्हें कहता हूँ कि जल्दी आया करो. So this thing is locked now. This resource is locked. So Mr. B will keep on waiting. इसको wait state में डाल दिया. So he'll be waiting. Meanwhile, this transaction continues. So withdraw 15,000. Now balance 5,000. This is green. मैंने जान के इसको रंग रखा है. That means it has been written down in the database. Database में लिख दिया. Now this lock has been released. Unlock. This resource is no more locked. He was waiting. As soon as it unlocked, now his transaction, Mr. B's transaction, will lock the resource. So now he can say see the balance. So now his command will show him what balance, 20,000 or what? 5,000. Right, cause this 5,000 is green. ये green कोई वो symbol नहीं है, मैंने पढ़ाने के लिए लगाया है सिर्फ. So this is green. So that means, in fact, now this has been written. It is complete. This transaction is complete. So now when it will try to show him the balance, and it will get the balance. Balance will not be 20,000 anymore. It will be 5,000. So he will get 5,000. Can he withdraw 10,000 out of it now? No, sir. सर 5,000 में से 10,000 कभी नहीं निकलते. So it is not possible. So he will send a logical command, that is withdraw 3,000, and now the balance is 2,000. So 2,000 plus 3,000, that is 5,000, and then he has withdrawn 15,000, so it becomes 20,000. So this locking technique has overcome the issue, has resolved the issue that we have seen without any control. So do you think that concurrency control worked in this case? Yes, sir. Yes, sir. Right. तो देखो अब जरा चेक करो. इसके बाद अगर हम देखें कि यार ये देखिए, अब आपको लॉक के दो टाइप्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई. यार ये थोड़ा सा ना तकलीफ दे, इसलिए मैं क्लास को दवाई जब मैं ले रहा हूँ तो थोड़ा मैं भी रिलैक्स हो जाऊँ. फिर मैंने कहा चलो पढ़ा दो, टाइम पर आया करो बच्चों. आपके पास टाइम लड़के वेटिंग में बैठ के इंतजार कर रहे हैं. वो कहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? वेटिंग में रिक्वेस्ट सेंड कर. नहीं, ये तुम्हारे सामने नजर आ रहा है. देखो आई एम प्रेजेंटिंग, कोई भी वेटिंग में नहीं है. देखो जूं डिंग डोंग होता है, मैं अपना लेक्चर छोड़ के जाके उनको बुलाने के लिए जाता हूँ. इससे तो डिस्टर्ब. इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना. ये जो लड़के देख रहे हैं इन्हें पता है एक एक मिनट के बाद मैं हर एक को अंदर ला रहा हूँ. पूरा लेक्चर डिस्टर्ब हुआ हुआ इस वक्त. एनी हाउ चलो माइक ऑफ करो. नाउ चेक. देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉक. ये देखो, देख रहे हो ना, ये बदतमीजी है ना यार, बार बार जाके बुलाना और फिर ये गलत हो रहा है. इतनी जरूरी इसलिए था कि पता चले कि कौन कब आता है. Mr. A, Mr. B, they have the joint account now, and now he does not say that I will change the balance, I will withdraw money, I will deposit money. He is not asking. What he is asking in his command, for example, this is the logic, right? Sudo. ये सूडो कोड है, ये कोई जबान नहीं है, लैंग्वेज नहीं है कोई. तो देखो क्या कह रहे हैं, ओनली, मैंने कैपिटल में लिखा शो बैलेंस. वो ये साबित कर रहा है कि मैंने कुछ चेंजेस नहीं करनी, मुझे सिर्फ दिखा दो. So in that case, we apply S-lock. S-lock. S-lock means shared lock. यानी ये ऐसा lock है that is also known as read lock. You can only read, you cannot write. So that means if I am only reading
and if somebody else also asks that only show the balance, I don't want to change it, then he will also apply an S lock and he will be शेयरिंग द डेटा। ये देख लो बेटा, जो आप कह रहे हो ना कि नहीं सर वो वेट कर रहे हैं, कोई नहीं यार, ये देखो ओनली शो बैलेंस, इसने एस लॉक, ही अप्लाइड एस लॉक, then he again said only show balance, he also applied the S lock, both are sharing, so it is allowed. So S lock is for what purpose? For the simultaneous transactions that are being accessed or that are accessing the same data but only for the reading purpose, then we apply the S locks, that is shared lock or read lock. अगर दो ट्रांजेक्शन या ज्यादा सिर्फ रीड करने का काम कर रही हो, चेंज ना कर रही हो, तो हम एस लॉक लगा देते हैं, जिससे सिर्फ ये पता चलता रहता है that somebody else is also reading. So if it is S lock, it has applied S lock over here, DBMS has applied S lock, then when Mr. B will come and he does not say only show balance, he said I want to withdraw money, then DBMS will check this resource has been logged or not. When it will find that it is logged, it will not permit, it will not allow Mr. B to apply his lock, that would be X lock, बताऊंगा 2 सेकंड के बाद, to withdraw the money. So this is only for the reading purpose, when you will have to look at the result, look at the balance, right? So this is the S lock. So आप अब बताओ यहाँ तक समझ में आता है, इधर तक दो लाइनों तक? जी सर, इसमें यही है ना सर कि जब एस लॉक होगा तो तब वो अगर हम अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो वो दोनों बंदे एट द टाइम एट द सेम टाइम चेक कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली वो देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे, बट इम्पोर्टेंट इज दे विल नॉट बी एबल टू चेंज, मॉडिफाई। बात समझ में आ रही है? यस सर, ये इसकी मिसाल जब मैं देता हूँ पढ़ाते हुए, तो आई ऑलवेज से दैट, से यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर ऑन सम बेंच, अभी तो कोरोना आ गया, दूर दूर बैठते हैं, and another person is sitting on the bench, your cousin, your brother, your sister, and he is also reading out some news from your newspaper. हम सर घुसा के पढ़ना शुरू कर देते हैं, yes or no? यस सर। That is sharing, that is sharing, हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप कोई नोट्स बना रहे हैं और आपका दोस्त आके कह रहा है मुझे भी दे, आप कहते हैं रुक जा यार मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, जब मैं लिख लूँ तो ले लेना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका मतलब आप शेयरिंग अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यार अभी आधा हुआ है, अभी तो चला जाए, यहाँ से बीच में से मत लेके जाए, क्या पता मैं इसको और कुछ चेंज कर दूं, अभी रुक जा। तो देखो ये एस लॉक इज फॉर द शेयरिंग। अब नाउ देखो अब क्या हुआ, उसके आगे जब व्हेन इट मूव फॉरवर्ड, मिस्टर ए's ट्रांजैक्शन हैज सीन द बैलेंस एंड नाउ इट आस्क विथड्रॉ, मैंने पैसे निकलवाने, नाउ इट वांट्स टू चेंज। In order to change, he cannot work with the S lock. He needs exclusive lock, X lock. Exclusive, judagana, separate, individual. Only give me all the resource. I want to change. So now what will happen? इसको हम right lock भी कहते हैं. It will request the X lock कि मुझे change करने दो. But when DBMS will look at this balance 20,000 and it will check somebody else has applied some lock, and it will find, oh, Mr. B has also shared lock, he is reading, so if he changes his read amount, ये जिसने पढ़ चुका है, read, his read account would be wrong, that amount would be wrong. तो क्या होता है, when it requests and it finds that the other transaction has got some lock on it, so it denies, it says नहीं है भाई, अभी नहीं मिलेगा, कोई और भी इसको पढ़ रहा है, somebody else is using the resource. Then अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, देख रहे हैं हमारे लिए फॉर्चुनेट है कि हम इसमें डेड लॉक पढ़ रहे हैं, अदरवाइज ये अनफॉर्चुनेट है। मिस्टर बी भी कहता है मैंने भी पैसे निकलवाने हैं, आई नीड एक्स लॉक, रिक्वेस्ट कर बैठता है मुझे भी दो। नाउ डीबीएमएस चेक्स and it finds Mr. A's transaction has already applied the S lock. Both has the S lock. It will not allow, this S lock will not allow X lock to this command, this transaction, and this S lock of Mr. A will not allow the X lock to Mr. B's transaction. So both go into the denial state. And in that case, there is a deadlock. But जब ट्रैफिक होती है ना चौराहे पे, सब गाड़ियां चारों तरफ से आ जाए और ट्रैफिक बंद हो जाती है चौक के ऊपर,
ये बिल्कुल वही है कि दोनों तरफ से रिसोर्स मांग रहे हैं, दोनों रिसोर्स दबा के भी बैठ गए हैं, so it will never happen. इसके लिए हम एमएस में पढ़ाते हैं, एल्गोज होते हैं. Sometime we say that the person who has more या high priority, तो उसको हम रखते हैं, दूसरे को किल कर देते हैं. उसको हम किल करना कहते हैं कि दूसरे की ट्रांजैक्शन को फिलहाल बंद कर दें, उसको निकाल दें. कभी ऐसा होता है हम टाइम बेस्ड एल्गो बताते हैं कि जिसका टाइम, द पर्सन हुज ट्रांजैक्शन हैज एक्सपायर्ड और हैज स्पेंड मोर टाइम, उसको आप किल कर देते हैं. और कभी तीसरे में हम ये करते हैं कि जो जिसने अभी कम टाइम लगाया होता है उसे किल करते हैं. आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके लेवल के ऊपर ये काफी है कि यू मस्ट नो व्हाट आर द एस लॉक्स, व्हाट आर द पर्पस ऑफ द एस लॉक, व्हेन द डेडलॉक अराइजेस. तो ये आपने देखना है. पहले बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब देखो जरा, अब देखना जरा, ये डेडलॉक हो गया और अब हमने डेडलॉक को हमने ये देखो यहाँ पर खत्म किया. कैसे? ये देखो, when Mr. A starts his transaction, we apply X lock. In the start, we apply the X lock, right? When there is X lock, it can withdraw money. Meanwhile, Mr. B will be waiting. When it unlocks the resource, then Mr. B's transaction gets or is provided with an X lock. So now that means he can also access the data. So he can get his 3000 rupees. ये पुरानी वाली एग्जांपल है, बट मैंने अब यहाँ पे लॉक के बजाय आई हैव रिटन X लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक टू राइट इट. राइट? पहले बताओ समझ में आता है? जी सर. Now check. अब देखो, this is one command that uses the locking technique. But now the e-commerce sites and other database sites, there is a science, there is a logic that they say that on the Daraz, on some other website, many people, thousands of people come, they look at the things and they do not buy. So they say that if you will lock everything, then nobody will be able to use that. पहले बताओ बात समझ में आती है? यस सर. मतलब इट सेज कि 90% लोग या 98% लोग जो है, they only look at the shirt and then they just move forward, and then they look at the shirt and then again they move forward. So that means in fact they are not changing, they are not buying, तो उनकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही. So it says when you will lock, in fact you will not allow others to look at it or change it. So now we have another technique of concurrency control that is known as versioning. You know that. What is versioning? Anybody? सॉफ्टवेयर के हवाले से बता दो, सॉफ्टवेयर वर्जन के. सर तो हम टाइम टू नए फीचर्स ऐड करते जाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर. Excellent. So versioning means there is some updation. Updation in the software, new version. Updation in the software, new version. So in this manner we keep on changing. So now check. We are on some e-commerce website and now we look at the shirt and we 3, 4, 5, yeah, 500 people are looking at the same shirt. So now I just, when I look at the shirt, I find the stock 5, that is available 5. Those, yeah, that kind of shirt is available and the quantity is 5. Yes or no? यस सर. Now check. On the app, web app or mobile app, jahan Zabe logs in, he looks at the same shirt, he gets the number 5. Meanwhile, Hamza logs in and he gets the same 5. Imran logs in, he gets the same, that is 5. Yes or no? Now check. Beta, everybody has got the first version, the first copy. Yes or no? पहले ये बताओ. आप थोड़ा सा देखो, जो बच्चे जवाब दे रहे हो ना, थोड़ा सा मुझे लगे कि यार पढ़ रहे हो, अदरवाइज तो फिर ये ना वन वे ट्रैफिक में मुझे पढ़ाने का मजा नहीं है. अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलो कि सर बिल्कुल नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है सिर्फ यस सर तो कह सकते हो. ऑल 3. यस सर. समझ आ रही है. राइट. चलो, क्योंकि खामोशी के दो मतलब होते हैं, एक ये होता है कि सब समझ में आ रहा है और एक ये होता है कुछ समझ नहीं आ रहा.
तो हमें पहले से तो फर्क नहीं पड़ता, दूसरे से बहुत पड़ता है कि किसी को कुछ नहीं आया और आप चले गए। अब जरा देखिए व्हाट हैपेंस, ऑल दीज थ्री गाइज हैव गॉट, मैं इसको फिलहाल यहाँ से वर्जन का लफ्ज हटाऊं, आखिर में लिखूंगा, all these three have got the same information 55555. So when I look at this, so this available shirt was in fact version 1. Now what happens, check, Jahaze buys 2, yes or no? When Yes, sir. Yes, sir. when he buys 2, what will be the available shirts now? Stock में क्या रह थ्री गया? सर, जी सर। Now सर 3. So check, 3 is version 2, yes or no? यस सर, Now check. Similarly, Hamza buys 2. Hamza ने 2 खरीदी. Now available क्या है? 1. 1 सर। वन सर, Right. Now check. If Hamza buys 2 simultaneously, will he be allowed to buy 2, or he must be stopped at, okay, जहाँ Zaid is buying or जहाँ Zaid has bought, so you must get the new balance, you must get the new, or he must be provided with these 2 shirts, उसको बेच दी जाए. उसको भेज दी जाएंगी सर। Logically, sir, he must be provided with these 2 shirts. Mic off करो. क्यों सर? इसलिए कि this has no conflict with available. We have 3, he is asking for 2. Yes or no? So now when we will provide him 2 shirts, out of these version 2, second version, DBMS does not stop him. Wait. No. When he asks for the 2 shirts, the only thing DBMS does is, in the case of versioning, it checks the last version. If last version is 3. If last version is logically allows this second transaction, then it executes. ये उसको दे देगा, ये सिर्फ चेक करेगा कि लास्ट वर्जन से कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आया, उससे ज्यादा तो नहीं मांग रहा जो यहाँ पे मौजूद है, नहीं है तो दे देगा. नाउ अवेलेबल लिमिट इज 1, वर्जन 3 बन गया. नाउ लेट मी नो ओनली वन थिंग, इमरान रिक्वेस्ट, अब मैं रिक्वेस्ट कह रहा हूँ, मैं बाय नहीं कह रहा हूँ, 2, अब उसने रिक्वेस्ट की 2. नाउ DBMS will check latest version, the version 3. So now let me know, is there any conflict in his request? यस सर, ही Yes, sir. requested for 2 but available 1. Right, he's asking or requesting 2 shirts, but available is 1. There is a conflict that availability is less. So in that case, that website, that web page says reload. दोबारा से load करो, right? When you reload, and this reload was only when there is a conflict. So when you reload, you get the latest version. So now Imran will be looking at the same shirt that it is available, but only one shirt is available. So will Imran be able to buy 2 shirts from this one shirt? No sir. So now he will realize कि stock change हुआ है, there is a change in stock, so I can see only one available shirt, I cannot buy 2. So this is the good thing of versioning. But sir, how good? Check. Now check. जहाँ Zaid bought 2, available 3 हो गया, पुरानी कहानी चल रही है, वर्जन 2 हो गया. Hamza buys, he did not buy. देखो ये इंपॉर्टेंट है, उसने कुछ नहीं खरीदा और वो अपना लॉग आउट कर गया. अब चेक करो मेरे पास कौन सा वर्जन बचेगा, 3 और 2? 2 सर। सर 2 होगा 2. ये देखो मैंने 3 को काट दिया कि भाई 3 पहले वाले में बन रहा था, यहाँ नहीं बनना चाहिए क्योंकि उसने पहले खरीदी थी, अब वो नहीं खरीद रहा. तो नाउ अगर इमरान रिक्वेस्ट करे 2 इस सूरत में जब हमजा ने नहीं खरीदी, will he get the 2 shirts or not? He will get the Yes, 2 sir. shirts sir. So now check. This is the reason. This is the reason versioning is known as optimistic. दकियानूसी नहीं होती, ये नहीं कह रही सब कुछ बंद करो, ये कहती है आप ओपन रखो, जब कॉन्फ्लिक्ट आए तो बंदे को तंग करना, वरना चलने दो यार. लेकिन याद रखना मॉनेटरी लेवल पे मैंने जान के किया, बैंक अकाउंट्स में हम लॉक कर रहे होते हैं, वहां पे थोड़ी सी एहतियात ज्यादा होती है. वहां वी नेवर अलाउ 2 persons टू touch the same account at the same time. So we ask them please wait for few seconds. कुछ ना कुछ हो रहा होता है पीछे, कुछ लॉक हुआ है, वो आपको रोकता है. अब वो तो सर्वर डाउन होते हैं, हमारा नेटवर्क डाउन होता है. लेकिन अगर कभी 2 लोग एक आ जाएं, और ऐसा हो सकता है, ये नहीं कह सकते नहीं हो सकता, दूसरे वाले को रोक दिया जाता है.
So now versioning is a positive approach. It is an optimistic approach. रोशन ख्याल approach है जो कहती है please help everybody until there is a conflict. तो बताओ बात समझ में आती है? यस सर। अब जरा आप देखो बेटा, इसके बाद सेकंड देखो, डेटाबेस रिकवरी। ये एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? whenever we lose some data, then we try to recover that data. So how can we recover? I told you every database has a backup. Backup क्या होता था याद करो? डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डाटा। Very good. सर ये डुप्लीकेट कॉपी था. So whenever Nadra is a big example, is a good example of a normal running database जिसमें एनालिसिस करना अलग है. वो उसका वेयर हाउस होता है जो कि चल रही होती है, चारों सूबों में चल रही है, हजारों लोग रोजाना उससे एक्सेस कर रहे होते हैं. तो होता क्या है? ऑल द डेटा इज ऑन द नादरा सर्वर्स. So now if any server gets corrupted, कोई वजह हुई, कोई आग लग गई, कोई हार्ड डिस्क की मशीन है जल गई, कोई मदरबोर्ड जल गया, विंडोज उड़ गई, डीबीएमएस भी उड़ गया, so there can be a chance. So what we do, we normally have a server that has the normal data. We keep a backup server, that is another server that has the current copy of data. Sab data वहाँ जाता है. Every transaction data that has been changed is updated in the backup so that this server and backup are updated. And there is another server that is known as standby server somewhere where we need to have uh, very good control on data and very secure data. For example, मैं कहता हूँ कि डिफेंस का डेटा है, मैं कहता हूँ हमारे पास कोई ऐसा डेटाबेस है जो कि हमारी फ्लाइट रिजर्वेशन का है, जिसमें डेटा हर वक्त एक्टिव होना चाहिए. देन वी कीप अ स्टैंड बाय सर्वर. इफ दिस सर्वर गोज डाउन, दिस सर्वर टेक्स द प्लेस ऑफ सर्वर वन. अगर सर्वर वन चला गया, इसकी विंडोज उड़ गई, ये करप्ट हो गया और आपने कहा सर रिकवरी नहीं हो पाएगी क्योंकि ये तो बैठ गया है, इसकी तो विंडोज भी उड़ गई है, सब कुछ, इसमें 2 घंटे लगेंगे सर सब कुछ अप करने में, इसमें 1 दिन लगेगा सर सब कुछ अप करने में. देन द स्टैंड बाय सर्वर टेक्स प्लेस ऑफ सर्वर वन. क्लियर और नॉट? पहले तो ये बता दो. और सर अगर सारे सर्वर डाउन हो जाएंगे साथ तो फिर क्या होगा? फिर उसको उस जमाने में हम कहते हैं कि इंटरनेट नॉट अवेलेबल, यूट्यूब नॉट अवेलेबल. कभी हुआ है इन दिनों में, पिछले कुछ अर्सों में? जी सर, वो व्हाट्सएप एक दिन डाउन हो गया था। देखो, अब देखो वो डाउन, व्हाट्सएप अब मेरी बात सुनो, वो सर्वर्स डाउन नहीं हुए थे, ठीक है? वो कभी आपका कम्युनिकेशन सर्वर डाउन हो जाते हैं, मतलब ऐसा बड़ा रेयर होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसा हो सकता है. पॉसिबिलिटी इज देयर. अगर वो 0.01% भी है तो हम एक मिनट माइक ऑफ करो. अगर 0.01% भी हो तो हम कहते हैं जनाब ये बैकबोन में, बैकबोन क्या है? जो हमारी मेन लाइन है जो हमें दुनिया के साथ जोड़ती है, वो खराब हो, जैसे हमारी समंदर के अंदर से गुजरती है फाइबर. अभी चाइना के साथ एक मैं गया था उधर गिलगित, तो मैंने वहां देखा कि आज से कोई 4 5 6 7 साल पहले वो पूरी एक फाइबर बिछ रही थी. तो वो पूरी पूरी सड़क पे ना, सैकड़ों किलोमीटर पे, तो वहां से हमें एक शायद और एक मेन लाइन मिल जाएगी, तो हमारा ये जो डिस्कनेक्ट होने वाला इशू है कम होगा. हाँ, अगर सब सर्वर बैठ जाए तो फिर अल्लाह ही अल्लाह किया करते हैं, बैठ के सुकून रखते हैं, नए सर्वर्स के साथ ला के फिर बैकअप से चीजें उठा उठा के डालते हैं. बट लेट मी मेक यू वन थिंग क्लियर एज अ डेटाबेस स्टूडेंट. नॉर्मली इफ डेटा इज क्रूशल, हम इतने मोहतात होते हैं, we do not keep the backup server in the same building. When there will be fire in the building, खुदा ना खास्ता, then the backup server will also get burnt. Yes or no? वो भी तो जल जाएगा, यस सर। Yes, sir. राइट? सो हम उसको अलग बिल्डिंग में ले जाते हैं और बाज़ औक़ात अलग शहरों में रखा जाता है, और ये बड़ा बड़ा कॉमन है. यानी आप ये नहीं कहते सर ऐसा कैसे होता है, ये क्लाउड्स ऐसे ही बन रहे होते हैं, ये बादल नहीं होते, ये सर्वर्स होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे पड़े हुए जो आपस में मिलकर काम करते हैं. खैर वो एक डिफरेंट कहानी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटेड इस पे चले जाएंगे. लेकिन सर्वर्स के लिए ख्याल रखना कि अगर देखो अब आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, you also keep the backup of your assignment. Sometime you keep it in the flash, then you keep it in your then you बेटा आपके इसमें नॉइज है, एक मिनट. अब देखो सुनो, कभी आपने फ्लैश में रखते हो,
कभी अपने आप को ईमेल करते हो, कभी लैपटॉप में भी। मैं कहता हूँ क्या किया है यार, सर जी बैकअप रखा हुआ है, अगर खुदा ना खास्ता है ना चला, देन आई विल एग्जीक्यूट फ्रॉम दैट फ्लैश, आई विल डाउनलोड फ्रॉम माई। देखो तुम्हारे रिसोर्सेज कम है ना, दैट इज व्हाई यू आर डूइंग दिस। बट अ बिग जाइंट कंपनी will have a server for the services or the data, and it will keep another one or two backup and alternate server or standby servers in some other building। आपने कहा सर सर्वर डाउन हुआ है, 30 सेकंड के अंदर दूसरे ने उसको स्विच कर लिया, ले लिया उसकी जगह। लोगों को बस ये पता चला है कुछ डिले आया है, उन्हें पता नहीं चला क्या हुआ है, सर साथ वाला सर्वर चल पड़ा है, काम कर रहा है। तो बिल्कुल ये हमारे साथ होता है। मतलब हमने खुद मोटरवे में जो काम किया, मैं ये नहीं कहूँगा वो उस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट था, लेकिन बेहतर चीज़ें थी। हम लोगों के पास अपने स्टॉक के अंदर एक्स्ट्रा सर्वर्स पड़े होते थे, और क्योंकि हम इंजीनियर्स थे, हमारे साथ हार्डवेयर इंजीनियर्स भी होते थे, तो हम उन्हें कहते थे भाई आप ये लगा दें, हम इसे कन्फिगर करें। तो लिहाजा इस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेट सर्वर्स को अपने पास, एक सर्वर हमारे पास हर स्टेशन पे एक्स्ट्रा पड़ा होता था, एक सर्वर हमेशा एक्स्ट्रा मौजूद होता था। अच्छा अब देखो, अगर इफ the data on this server, the normal server that got corrupt, वो खराब हो गया, वो डिलीट हो गया, आपने कहा सर for last 4 hours we have got the data, but that data has been for example I may say that has been corrupted due to some reason, उसको corrupt कर दिया गया किसी ने, कोई अटैक हुआ कुछ, या सर there was some issue, some although कि नहीं होते सर्वर में वायरस, एंटीवायरस और फायरवॉल्स लगी होती, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ड्यू टू एनी रीजन वी हैव लॉस्ट द डेटा फॉर लास्ट 4 hours। So what will I ask you? I'll say, okay, get the data from the backup and recover. Backup has all the data. So we will start that data recovery. We will start fetching back, bringing back the data in the server one। मैं अभी क्या कह रहा हूँ, सिर्फ डेटा उड़ा है, only there is a loss of data। Windows is intact, DBMS is intact, all the applications and services are working, and all the previous data is there. So I will ask, okay, fine, there is no issue, recover the data। So we start fetching, हम यहाँ से डेटा लाते हैं, यहाँ पे रखते जाते हैं, और हमारा सर्वर फिर अप टू डेट हो जाता है। So can you understand this first technique of recovery, that is bringing back the data from the backup? Yes sir. अब देखो जरा, पहला मैंने क्या लिखा है, रिकवर फ्रॉम द बैकअप। इफ देर इज लॉस ऑफ डेटा देन गेट द डेटा फ्रॉम द सर्वर, बट इफ देर इज सर्वर that is not responding, no windows, no dbms, then what will happen, check, switch to the standby server। फौरी तौर पर अपना सर्वर चेंज कर देता है वो, और ये हम नहीं कर रहे होते, ये बाज़ औक़ात ऑटोमेटिक होता है, ये चंद सेकंड्स का इनका डिले आता है, इट गोज डाउन, इट सेंसेस कि डाउन हुआ है, ये अप हो जाता है। और अगर मैनुअल सेटअप हो तो ये डाउन होता है, तो फौरन जो हमारे ऑपरेटर्स बैठे होते हैं वो इसको अप कर देते हैं और ये इसकी जगह ले लेता है। तो लिहाजा देखो, दो हो गए। In the first case, we recovered the data from the backup. In the other, we switched to the standby server. Now check one thing. If there was some data and we were running a transaction that get 5 rupees from my account and put those 5 rupees in Ahmed's account, yeah, Hasanat's account. So what happens now? In fact, when I say that कि आपने यहाँ से डेटा निकालना है और यहाँ पे डालना है, नाउ सॉरी इधर ही डालना है लेकिन हसनात के अकाउंट में, इट टुक माय डेटा, इट माइनस or it just deducted 5 rupees out of 10 rupees from my account, but while it was writing, समझना, while it was writing +5 in Hasanat's account, the system went down, system बंद हो गया, ट्रांजैक्शन आधी चली थी, ट्रांजैक्शन ने मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए लेकिन हसनात को नहीं दिए। तो अब क्या ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, डेटा पूरा हो गया था? No sir. No, sir. सर ट्रांजैक्शन इज इनकम्प्लीट, कुछ इशू कुछ और है जो आप बताना चाह रहे हैं। नाउ चेक, माय प्रेजेंट वैल्यू इज 0.10, यानी 10 रुपए मेरे पास पड़े हुए थे, ये देखो मैंने विड्रॉ किए 5 रुपए, तो मेरे पास अपडेटेड वैल्यू क्या रह गई? 5 sir. 5 आ चुकी है सर।
अब जरा देखो, एवरी डीबीएमएस कीप्स टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, प्रीवियस एंड अपडेटेड। नाम वो कुछ और देगा लेकिन रखता है। लुक, व्हेन आई स्टार्टेड माय ट्रांजैक्शन द वैल्यू वाज 10, यस और नो? Yes, sir. So it keeps this 10 as before image, यानी डेटा का image before the transaction started. So it saves it that value. When I will deduct 5 rupees from my account, then the new value is 5. So after the completion of transaction, my value is 5. So it will say after image is equal to, देखो यार ये जुल्म है ना, आप लोग 9-22 तक तशरीफ ला रहे हैं। अब ये देखो, आफ्टर इमेज, सो व्हेन द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। अब मैं नहीं चाह रहा हूं कि आखिरी दिन आपकी बेइज्जती की जाए, 4 महीने इज्जत से गुजरे हैं, अच्छा पढ़ा है आप लोगों ने, तो अभी आपको तंग किया जाए। लेकिन यार थोड़ी सी आदतें बदलनी होती हैं बेटा। हाँ, कोई इशू है, लाइट का इशू है, वो मैं आजकल देख रहा हूँ कि लोड शेडिंग ज्यादा है, वो तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज यार ये आदतें बदलो ताकि तुम लोग आगे कामयाब हो। चलो अब ये देखो फिर, व्हेन द सर ट्रांजेक्शन, उसकी वजह से सर गर्मी भी बहुत शदीद हुई है सर। मैं समझ सकता हूँ बेटा, क्योंकि कल मैंने उस स्कूल के बच्चों को बेहोश होते देखा है, तो मुझे फिर एहसास हुआ है कि यार जून वाज नॉट द मंथ। हमारी पूरी जिंदगी में ये 10-15 जून रेयर होता था कि आए, हमें जून में छुट्टियां हो जाती थी। तो अब तो गर्मी भी ज्यादा है, बच्चे भी ज्यादा नाजुक हैं, हम फिर भी थोड़ा सा खेल कूद कर लेते थे, स्पोर्ट्समैन थे। तो अब तो बच्चे बेहोश हो रहे हैं और उनको पानी डाल रहे हैं, उनको ले जा रहे हैं, और 8-8 घंटे बिजली नहीं है। बस एक काम करो, अल्लाह से रहम मांगो कि यार किसी के साथ कुछ गलत ना हो और ये फैसिलिटीज दोबारा से मिल जाए। पहले भी मौजूद थी, चल रहा था निज़ाम, दफ्तर भी खुले थे स्कूल की, बस कुछ गलत हो गया, अल्लाह ताला आसानी कर दे सबके ऊपर और बच्चों को बचाए। चलो अब देखो आमीन। जरा, चलो, before image was 10, and when it has been updated it has deducted 5 rupees out of 10. So now it will keep the after image as well. So now listen one thing, this thing happened but it has not reached to the backup. Remember, it has not ये देखो भाई शहजादों पे तुम कहते हो कि सर, हाँ ईसा इतना लेट क्यों हो गए मेरा बेटा? ईसा लेट क्यों हो गए इतना? चलो जी, वेरी गुड। सर वो फॉरेनर है तो उनका इशू होता है इंटरनेट का उधर। ईसा, फ्रॉम वेयर यू हैव लॉग्ड इन? Sir, from Afghanistan. So why you are so late? Sir, internet connection problem. Yes, sir. Inshallah, I will Yeah, learn yes, yes, from yes. recording. Okay, 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 fine. You will have to study, okay? That this is Yes, important sir. topic, and I can Yes, sir. understand the issue of internet and electricity. We were just discussing about the electricity issue in Pakistan. So I can understand we are third world countries and we are trying to adopt the techniques and technologies that are good for the developed countries, and we are just spoiled the situation of teaching, right? So पैथेटिक है, लेकिन चलो गुजारा करते हैं, क्योंकि जो अमेरिका शमेरिका में तो बिजली नहीं जाती, वहां पर ठीक है, इंटरनेट स्ट्रांग है। पाकिस्तान में सिस्टम पता नहीं हम किस बरते पे चला रहे हैं, किस भरोसे पे चला रहे हैं कि आधे बच्चे जो हैं दे आर जस्ट सफरिंग बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, सिग्नल्स प्रॉब्लम। नो, अल्लाह ताला आसानी करे सबके लिए। ये देखो जी, somebody else came, मुबश्शिर, ये कहाँ से है जी? अब ना कह देना ये भी उधर से है। मुबश्शिर लेट क्यों हुआ, मैं पूछना शुरू करूं? पहले मैंने कहा था आखिरी क्लास बहुत प्यार मोहब्बत से खत्म करनी है ताकि कैसे 4 महीने गुजरे, लेकिन अब पिटाई होगी। मुबश्शिर कहाँ से आ रहे हो तुम इस वक्त? सर बाहर गए थे पानी भरने सर। क्या करने? पानी भरने सर। यार अल्लाह का वास्ता है, घर वालों को समझाओ, दही, धनिया, पानी, हरी मिर्च, ये सब चीजें या तो 8:30 से पहले मंगवाएं और या क्लासों के बाद। अल्लाह का वास्ता है यार, दोनों कसमें बेइज्जत करते हो टीचर को। पानी लेने गया था, कितनी दूर है फिल्ट्रेशन प्लांट?
सर वो भाई ऑफिस चले जाता है ना सुबह सुबह, तो वो तो पहले तू भरना पड़ता है। तो तू सुबह सुबह क्यों नहीं जाता? तू सुबह सुबह जागता क्यों नहीं है 7 बजे, ये बता। नमाज से 5 मिनट पहले सोता होगा, फिर तू उठता होगा क्लास के शुरू होने के बाद, फिर पानी भर लूं पहले, है ना। चलो खैर, एनी सर हाउ, टाइम जाया करते, सर पंक्चुअल पानी हो की जाओ। बहुत कमी हो गई है अब। बस बच्चों, अब एक वो वाला वक्त होता है ना जब हम कहते थे कि भाई कुछ ठीक हो जाएगा, तो अब हम ये कहते हैं, अब ये कोई सियासी बयान नहीं है, ये बयान है जो कि हम फेस कर रहे हैं। और मैं इसलिए शायद थोड़ा जज्बाती भी हुआ हूँ कि कल छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें थी, वो लड़का है उस पर पानी डाल रहे हैं, तो शायद मैं इस वक्त जज्बाती हूँ, मुंह से कोई गलत बात और बेहुदा बात ही निकलेगी, तो सियासत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार आई एम सॉरी टू से, मैंने 3 साल पहले बिजली को पूरा देखा है, आप भी बच्चे नहीं थे, काके नहीं थे, बिजली पूरी थी। अब हम 2.5 गुना बिल दे रहे हैं, हम 2.5 टाइम हाई हो गए हैं और बिजली नहीं आ रही। मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान में 90% लोगों के पास यूपीएस नहीं होते, तुम लोग तो ब्लेस्ड लोग हो, यूपीएस लगे हुए हैं, पंखा चल रहा है, तुम्हें याश हो। लेकिन सोचो उन बच्चों का, छोटे छोटे स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, जो भी हैं, हम बुजुर्गों का भी सोचते हैं, जब नहीं है बिजली तो आप सोचो। तो मैं हैरान हूँ कि वो बिजली, ये जो मरदूद थे वो प्लांट क्या ये शॉपरों में ले गए, वो तो लगे हुए हैं सिस्टम्स, क्यों नहीं चल रहे, क्यों नहीं बिजली मिल रही? जब हम बिल पूरा दे रहे हैं, हमें बिजली तो दो। चलो और फैसिलिटीज को हम कह सकते हैं अय्याशी वाली, लेकिन बिजली तो नीड है। अब तो पानी नहीं चढ़ा सक रहे लोग, कई लोगों की शिकायत है कि जी वो पानी आता है तो मोटर चलती है और पानी नहीं आता है तो मोटर बिल्कुल नहीं चलती है, बकौर जरदारी साहब के बच्चे के, बिलावल के। तो इट इज़ नॉट सियासत, लेकिन यार ऑनेस्टली आई एम जस्ट फेड अप ऑफ इट कि बच्चे तबाह हो गए हैं और ये ऑनलाइन सिस्टम ने तो हमें बिल्कुल मार दिया है ना। तो देखो दुआ करो, मैं अब वहीं पर आ गया हूँ कि बेटा अब हम उम्मीद भी बस अल्लाह से ही है, पहले भी अल्लाह से थी, लेकिन कोशिश होती है कि शायद कोई बंदे ठीक कर दें। लेकिन जिस तरह माहौल चल रहा है, लग रहा है किसी के कान पे कोई जू ही नहीं रेंग रही, कोई सोच ही नहीं रहा, कोई सर अब तो कोशिश यूनिट ही भी नहीं कर महंगा रहा। हो गया है जब से इमरान खान की हुकूमत आई है। यार वो मुझे खान शान से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि हमें, अगर चलो मैं मानता हूँ तुम लोग बिल देते हो या बिल नहीं देते, कुंडे डाले हुए हैं, नहीं बिल सर, देते बिल हैं। बिल देते हैं सर। अगर बिल देखें ना सर, देते हो ना, थ्री बिल थ्री बिल देते हंड्रेड हो से ना ऊपर आता है तो वो 19 रुपए की यूनिट होगी। अगर 300 से ऊपर आए वही बिल भाई। सर। पिछले महीने जो हमारा 3500 आया था, इस दफ़ा जो है वो 7,500 आ रहा है। तो तो बस बेटा वो देखो, मैं यही वाली बात कर रहा हूँ कि खान और नो खान, हम निज़ाम की बात कर रहे हैं कि निज़ाम ख़राब हो रहा है, जिसके तहत हम लोगों ने बिजली के बिल भी दे रहे हैं और बिजली फिर भी नहीं मिल रही। यानी ये कहा जाता था कि अगर आपके पास बाइंग पावर है तो गवर्नमेंट कम से कम आपको पेट्रोल, अगर मैं खरीद सकता हूँ तो यार देना। लेकिन अगर पेट्रोल नहीं मिल रहा तो फिर मसला है, बिजली नहीं मिल रही तो मसला है। तो ये चीज़ें रिजॉल्व हुई थी, मतलब बिसाइड ऑल दैट कि मैं कौन हूँ, किसको वोट करता हूँ, इसको छोड़ दो। लेकिन 2018 मई में मैंने किसी को टेक्स्ट किया था कि आप लोगों ने बाद में रोना है कि जी बिजली तो पहले भी लोड शेडिंग थी, तो नोट कर लें मई में 0 लोड शेडिंग है इलेक्शन से पहले। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है जी, आप जो बातें कर रहे हैं आगे देखें, इससे बेहतर होगा। तो अब मैं उनको बताना चाहता हूँ, शर्म आती है, मुझसे बड़े हैं कि मैं उन्हें कोई उल्टी सीधी बात कहूँ कि हाँ जी 3 साल में, अभी कल वो पीटीआई के वजीर ने वो बैंड बजाया है कि मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ कि अपना वजीर कैसे बोल गया, उसने चीखना शुरू कर दिया है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि कहीं कहीं पे लोड शेडिंग हो रही है, 6-6 घंटे नहीं हो रही, 20-20 घंटे हो रही है। उसने जगहों के नाम भी बताए, वजीरों के नाम भी बताए, यानी वो हुकूमत का हिस्सा है। और कल बेचारा पता नहीं वो कितना परेशान हो चुका था, उसने बोला है कि लोग हमें माँ बहन की गालियां देते हैं, रात को 10-11 बजे बुला लेते हैं कि जी आ जाए, लाइट नहीं है, हम शर्मिंदा हो रहे हैं, लाइट तो पूरी दे दें। तो उस बंदे ने तो कल वो उधेड़ा है कि मैं खुद हैरान कि यार गवर्नमेंट का बंदा गवर्नमेंट को गाली नहीं दे सकता। और दूसरे वजीर ने उसको कहा कि चुप हो जाए, तो वो और गुस्से हुआ कि मैं बोलूंगा और मैं बोलता रहूंगा। अब मुझे उसका नाम नहीं आता, वो पीटीआई का वजीर है, लेकिन कल लगा कि यार कोई बंदा दिल से बोल रहा है और सच बोल रहा है, वो आवाम की शायद तो गालियां वालियां पड़ी होंगी बेचारे को, तो उसने तो वो उधम मचाया है, वो 15-20 मिनट वो रुका ही नहीं है। वो बलूचिस्तान से शुरू होता था, कश्मीर पहुंच जाता था, कराची से शुरू होता था, तो केपी के आखिरी उस तक उसने तो नाम ले लेके हमें मारा है, मतलब गवर्नमेंट को मारा है। तो अब यही है बेटा कि अब सोचना है कि अब क्या होगा और अगली दफा क्या होगा। थोड़ा सा आप अपनी सेंस डेवलप करें और तकरीरों और शक्लों और हैंडसम को छोड़ के ना
कोई अल्लाह का वली ढूंढे जो कि पाकिस्तान से सिंसियर हो। मैं नहीं कह रहा हूँ मौलवी ढूंढो, खुद ढूंढो। मैं नहीं कह रहा हूँ ए और बी, किसी को भी नहीं दो, लेकिन वोट जरूर दो जिसको तुम्हें पता हो कि यार ये ईमानदार लोग हैं और ये काबिल भी हैं। ईमानदारी से काम नहीं होता। अगर अहलियत नहीं है, मैं बड़ा जनाब अच्छा बंदा हूँ, मुझे क्रिकेट की बड़ी नॉलेज है, अगर मुझे बल्ला पकड़ना नहीं आता तो मुझे क्रीज में मत उतारें, क्योंकि मैं उस काबिल नहीं हूँ। तो सोचिएगा, सियासत में मत पड़े, लेकिन पाकिस्तान को सोचते रहें, पाकिस्तान को हर लम्हे सोचें। हम अब मरने वाले हैं, हम बूढ़े हो गए, आप लोगों ने जिंदगियां गुजारनी है। कम से कम इस पाकिस्तान को ऐसा तो बना लो यार कि जैसा आज से 2012 में मैं 3-3 घंटे सीएनजी की लाइन में 4-4 घंटे ख्वार होके बगैर सीएनजी के पेट्रोल डलवाता था और घर आ जाता था। 2018 में मुझे अच्छी तरह याद है, 17 के दिसंबर में कोटा सिस्टम था, जब औरतों को चाहिए गैस तो सुबह 6 से लेके सुबह 10 बजे तक गैस गाड़ियों को बंद कर दी गई थी, रात को 6 से रात 10 तक गैस बंद कर दी गई थी। तो हमें गैस नहीं मिलती थी गाड़ियों को, लेकिन हमें अच्छा लगता था कि बाकी टाइम में रात को हम 11:30-12 बजे दिसंबर की रात में जाके भरवा आते थे, हमारी गाड़ियां चल रही थी। इस दफा हमारी गाड़ियां 2.5 महीने पेट्रोल पर चली और पेट्रोल इंतहाई हाई कीमत पर था, मतलब हमारे बजट्स खत्म हो गए। तो कहने की बात यह है कि रोना हुकूमतों का नहीं होना चाहिए, रोना निज़ाम का होना चाहिए कि सिस्टम काम कर रहा है या नहीं। नहीं कर रहा तो यार फिर शर्म करनी चाहिए कि हम उसको डिफेंड कैसे करते हैं। मेरी उम्र के लोग हैं बूढ़े जो अभी भी डिफेंड कर रहे हैं, वो जी 70 साल तक कूड़ा। मैंने कहा यार जो 2012 का कूड़ा था वो 18 तक साफ कर दिया था उन्होंने बहुत सारा। हम उनके साथ हों या उनके खिलाफ हों, लेकिन हमें ये मानना पड़ता है गैस भी थी, रोटी सस्ती थी, आटा सस्ता था, चीनी सस्ती थी, गरीब 2 रोटियां खा रहा था, मिलें चल रही थी। और अब आपने सब कुछ तबाह करने के बाद आप कह रहे हैं कि जनाब सब कुछ सेट है, आप डिफेंड कैसे कर सकते हैं? ये तो अल्लाह के खौफ वाली बात है ना। अस्पतालों में इलाज जहाँ जहाँ मुफ्त है वहाँ वहाँ पैसे लग गए, दवाइयाँ कई 100 गुना बढ़ गई। मेरी दवाई जो महीने की 3,500 की आती थी वो अब 5,500 की आ रही है। मतलब मुझे तो रोना बनता है भाई, मेरी तो तनख्वाह में गुजारा ही नहीं है और तनख्वाह बढ़ती नहीं। तो यानी हाँ, दफा करो ये डिप्रेशन की बातें हैं। कल वो बच्चे मैंने देखे हैं बेहोश पड़े, तो मैं वाकई डिप्रेसिव रहा हूँ रात को कि यार किसी के बच्चे को अगर कुछ हो जाए तो मतलब ये निज़ाम क्या करेगा? ये जाके 2 वजीर तस्वीरें खिंचवाएंगे, 2 अपोजिशन लीडर तस्वीरें खिंचवाएंगे, इन्हें पता ही नहीं होगा कि माँ और बाप के ऊपर क्या गुजरी है, छोटा सा बच्चा उनका फौत हुआ है। तो अल्लाह ताला रहम करे, बस दुआ करो बच्चों, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता, बस दुआ करो कि रहम करे अल्लाह। बस मौसम ही बदल दे, बिजली तो इनसे पूरी नहीं होगी, अल्लाह ताला मौसम ही चेंज कर दे, ठीक कर दे थोड़ा सा। एक्सक्यूज सर, ये ब्रोक डाउन क्या होता है? मैं यहीं पे जाने लगा, मैंने ये इसलिए क्लिक किया। इधर देखो जरा, बिफोर इमेज है, वैल्यू बिफोर द ट्रांजेक्शन वॉज 10, when I deducted 5 rupees, so my this transaction became 5, but it has not reached to the backup, ये बैकअप पे नहीं पहुंचा अभी। एंड एट दैट टाइम ब्रोक डाउन, हम कहते हैं ना गाड़ी खराब हो गई, ब्रेक डाउन हो गया जी मेरी गाड़ी का। तो ये ब्रोक डाउन क्या है, हमारा उसी वक्त सिस्टम ब्रेक डाउन कर गया, वो बैठ गया और बैकअप में अभी नहीं गया हुआ। अब बताओ हाउ टू रिकवर दैट ट्रांजेक्शन, ये क्वेश्चन है। डीबीएमएस kept the before image after image and it was running the command, उसने भी वो किया था, लेकिन अभी वो राइट कर रही थी सर्वर में, फिर उसने राइट करना था बैकअप सर्वर में, बिफोर इट कुड राइट इन इट्स ओन सर्वर एंड द बैकअप सर्वर ओनली ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड। एक कंफर्मेशन होती है, उसे हम कहते हैं कमिट होना। कमिट होने का मतलब ये होता है कि डेटा सेव भी हो गया है, सेव होने से पहले वो उड़ गया, सर्वर बैठ गया। अब क्या सोल्यूशन होगा? एनीबडी? देखो बेटा, आप समझना, इनफैक्ट वर्ड में अंडू क्या करता है? जो हम डाटा डिलीट करते हैं वही हमें शो कर देता है जो रिसेंटली डिलीट हुआ था। जो नहीं रीसेंट, जो प्रीवियस स्टेट होती है ना उसमें ले जाता है। आपने बोल्ड किया, देन यू सेड अनडू, तो वो उसको अनबोल्ड कर देगा। यस और नो? प्रीवियस स्टेट में लेके जाता है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. प्रीवियस नाउ नाउ अब यहाँ पे देखो कैसे ज्यादा सारे यस आए हैं, जज्बाती बात हुई है ना, गुस्सा आया है और ब्लड प्रेशर हाई हुआ है और बिजली का गुस्सा आया है, कैसे सबकी आवाजें हैं। अब देखो जरा, नंबर 1 इज, ये देखना यहाँ से, ए एक्स वॉज द 10 एंड ट्रांजेक्शन वॉज -5 कर दो, इसमें से 5 निकाल दो। सो व्हाट हैपेंड,
x was 10, it was before image, and then we just deducted 5 from the x is equal to x minus 5, yes or no? Yes, sir. And now x is equal to 5, 10 में से 5 निकाले 5 बचे, so here we have after image. बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. This transaction executed and then suddenly system went down. अभी लिखा नहीं गया था, transaction चली थी and it was writing on the hard disk, commit होना था, उसने पक्का होना था कि हाँ जी ये हो गया और system चला गया. When this server will be, we will just restart the server, and when it will take the control, it will check what was the last state, and it finds, oh, there was a command, there was a transaction that was running, but it was not stored, it was not saved on the hard disk. So what it does, it simply undo the things. ये कहता है यार एक काम करो, before image लगा दो, उल्टा चलो. Transaction was not written, so kindly undo it. So now check. जब undo करेंगे तो before image लगाएंगे, जो उसने अपने पास पुराना image रखा था, क्या थी वो वैल्यू, जरा ये देखो before image की 10, ठीक हो गया. तो उसने क्या किया, it took that before image और इसने undo कर दिया before image लगा के, and now again x is equal to 10. That means that transaction has no effect. We have to rerun the transaction. दोबारा चलानी पड़ेगी. पहले बताओ yes or no? Yes, sir. Similarly, I said that, अभी तो ये एक था ना, now I said that take ₹5 from this account A, and B transaction said put it in this. So now x is equal to 10 before image, you brought out ₹5 and you sent that ₹5 to that other account, that is y was 15, that was the before image, and now it is y plus 5. So now when I add this 5 over here, it will become 20 after image. So now it will write y is equal to 20. That is complete now. But if I say that before writing, it got deleted, what will happen now? यहाँ से ये सर्वर डाउन हो गया. अब क्या होगा तुम्हारे ख्याल में? फिर सर वही undo कमांड चलेगी और आफ्टर इमेज से चलेगी. सर अब फिर undo कमांड चलेगी और इस सूरत में हमें यहाँ पर कहीं पर ये वापस वाला इमेज लाना पड़ेगा. यस और नो? जी सर. तो अब देखो ये हमारे पास आ गया, इसको हम कहते हैं रोल बैकवर्ड. ये देखो undo, बिफोर इमेज लगाना, और इस पहले बताओ समझ में आता है रोल बैकवर्ड, उल्टा चलना, undo करना? जी सर समझ आ गया. And one is the roll forward. If it happens, it checks and it finds out that in fact we have the command till this state that it has brought out x minus 5, it has the after image 5, यहाँ तक देखना बस, इससे नीचे नहीं, ठीक है. And now it has sent that 5 to the other account plus 5, and here we have after image. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? But जी सर समझ आ गया. it has not written. So when it will go down and we will just restart, we will just fix it, and when it takes the control, it checks. If we find that the whole transaction executed but it could not write down, then we say that roll forward, आगे चलो. आगे चलने का क्या मतलब है? Write down this after image. इसको अब लिख दो कि now y is equal to 20 written. देखो रोल फॉरवर्ड क्या होता है, जिस तरह आपके पास वर्ड में रीडू होता है, आप आगे गए, देन यू केम बैक एंड देन यू सेड रीडू, दोबारा से करो. तो देखो ये है वो चीज, ये वो कहते हैं दोबारा लिख दीजिए. बताओ कुछ समझ में आता है या नहीं? जी सर. पक्की बात है?
देखो आफ्टर इमेज पड़ा हुआ था, नाउ इट विल चेक व्हाट हैज हैपेंड, ओके दिस, so it says okay this is after image, yes, so it will say okay write down the after image, now x is equal to 5, इसे कंफर्म कर दो, go to the other account, it is the after image, yes, okay, इसे कंफर्म कर दो। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम आगे की तरफ चलते हैं, उल्टा नहीं चलते। लेकिन ये हमारे पास, वही मैं बताऊंगा कि हमारे पास एल्गोज होते हैं, टेक्निक्स और पॉलिसीज होती हैं, और डीबीएमएस उनके मुताबिक डिसाइड कर रहा होता है। अगर उसके पास एक आफ्टर इमेज नहीं है, ये वाला नहीं है, तो वो रोल बैक कर जाएगा कि सर आधा चला था, आधा चला ही नहीं था। फिर अगर वो कहता है पूरा चल चुका था, लिखा नहीं था, तो रोल फॉरवर्ड करेगा। तो ये टेक्निक्स है, बस आपको ये पता हो कि रोल बैकवर्ड जो होता है वो अनडू होता है, रोल फॉरवर्ड जो होता है वो रीडू होता है। यस और नो? बस अब टाइम खत्म हो रहा है, मैं एक चीज आपको बता के खत्म करना चाहता हूँ, थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ एग्जाम्स के बारे में। तो एक चीज मुझे बताइए, जब ये वर्ड आप ओपन करते हैं and you do not type anything, even you do not press a space bar, even you do not write one, type one, and then you delete, nothing. And when you close it, it asks you to save the document. वर्ड में अगर मैं कुछ ना करूं, ना स्पेस दबाऊं, ना बैक स्पेस दबाऊं, ना कुछ लिखूं, ना डिलीट करूं, जब मैं बंद करूं तो मुझसे कहता है सेव करना है या नहीं? नो सर, वो नहीं पूछता। कोई और? नो सर। झल्ले बैठे हैं सारे, चौथे सेमेस्टर के झल्ले बैठे हैं मेरे आगे, वर्ड के बारे में बातें कर रहे हैं। ये नया डॉक्यूमेंट, ये देखो नया डॉक्यूमेंट खुला है। देखो मैं क्या करूंगा, मैंने ए प्रेस किया और मैंने बैक स्पेस कर दिया, कोई चेंज नहीं हुई ना। लेकिन जो ही देखो मैं इसे क्लोज करूंगा, नजर आ रहा है सबको या नहीं? नाउ चेक, आई हैव जस्ट टाइप्ड ए एंड डिलीटेड दैट, दिस इज अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट फॉर मी। व्हेन आई क्लोज, चेक, इट इज आस्किंग डू यू वांट टू सेव। देखो पूछ तो रहा है। समझ में आती है बात या नहीं? नाउ चेक, Yes, sir. I open a new document, I do not do anything, and I close and check, it will not ask me. गया, yes or no? How Word knew that it has to save, and why in the other case it did not ask to save? ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये कभी कभी ना वैसे ही आ जाती है कि यार इनको पता कैसे चल रहा होता है, ये तो अकलमंद तो नहीं है सॉफ्टवेयर कि यार यहाँ पे कुछ हुआ था, यहाँ पे देखो। अब समझा देता हूँ बजाय टाइम जाया करने के। चेक, डेटाबेस में भी होता है जिसका हम नाम रखते हैं डर्टी वेरिएबल। डर्टी वेरिएबल मीन अ वेरिएबल that tells there is a change in database, there is some change in our data. So dirty variable is what? It is a boolean variable. It can keep the value 1 or 0, and when we start our software, the dirt, ये देखो कोई चौधरी साहब आए हैं N945 पे, ये कहाँ से आया बताओ मुझे पहले? पाकिस्तान से है या अगर अफगानिस्तान से है तो आने देते हैं, पाकिस्तानियों को रोक देते हैं। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से है। चलो आने दो, फिर आने दो, क्योंकि अब ये जो आखिरी 5 मिनट में जो लोग हाजिरी लगाने आएंगे उनको नहीं आने दिया जाएगा। डर्टी वेरिएबल क्या होगा जरा चेक करना। व्हेन आई स्टार्ट द सॉफ्टवेयर, डर्टी वेरिएबल इज 0 and when I make any change in my data, there is some activity in the database, the dirty variable gets changed from 0 to 1, ये change हो जाता है। And then DBMS realizes that there is a need to save, or there is a need not to save but to confirm. So check करो, ये dirty variable is nothing, it is a variable that is working to tell the software that there is a change or not. Now check what will happen। अगर मैं ये कहूँ, मैं नाम बदल दूँ, मुझे नहीं पता वर्ड में क्या होता है, लेकिन मैं सिर्फ लॉजिक बताना चाहता हूँ। There is a variable known as dirty variable in Word, चलो हम नाम यही रखते हैं। And when I open a new document, that dirty variable's value would be क्या होगी? 0. I did not type anything, even not a space. When I close, तो dirty variable की value अब क्या होगी? अभी भी still it will be 0. So when I close, Word checks if dirty variable has not been set to 1, so it will not ask me check. But when I start and check, I just press a space। देखो मैं शरारत क्या कर रहा हूँ, कुछ लिख भी नहीं रहा, एक स्पेस।
Now dirty variable value was 0. Now it is It is 1, sir. 1 because I have pressed a space. When I will say close, check, it is asking me, right? तो समझ जाओ। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं? ये नॉलेज है, ये वो नहीं है कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी कहानी बता रहा हूँ। छोटी सी लॉजिक है जो हमें बताती है कि हम चेक के कुछ भी तो नहीं था। वर्ड ने जाके सिर्फ चेक किया एक वेरिएबल को कि यार यहाँ पे कुछ हुआ था, जो कि इस शख्स ने छुप के किया, ए दबाया, इट डिलीटेड द ए, सो कुछ तो हुआ है और मुझे अब पूछना पड़ जाएगा, क्योंकि वो ये ट्रैक नहीं रख रहा आपने क्या टाइप किया, माय नेम इज, नहीं कुछ नहीं, वो सिर्फ ट्रैक रख रहा है कि इसने कुछ तब्दील किया है। और हाँ, जो आपका वर्ड का अनडू है वो पिछली कुछ स्टेजेस को अपने पास रख रहा होता है। ये बहुत ख्याल रखना। बात समझ में आती है या नहीं? हजरात क्या हो गया? सर सर पिछली कुछ स्टेज से क्या मतलब है? ये देखो, मैंने ये देखो, अब तो सब लोग देख लो इसको, ये डर्टी वेरिएबल टाइप्ड है, और ये देखो मैंने इसे कंट्रोल बी कर दिया, ये जी बोल्ड हो सर। गया, बोल्ड बोल्ड। प्रीवियस स्टेट क्या थी? बिफोर कि इमेज, सर ये बोल्ड नहीं था। ये बोल्ड नहीं था। तो देखो तुम समझो कि भाभी हम डेटाबेस की जबान में बातें करते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वर्ड शर्ट, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ लॉजिक। सो नाउ व्हेन आई विल अनडू, ये देखो ये अनडू का ऑप्शन है या कंट्रोल जी का ऑप्शन है। मैं यहां से इसको अनडू करता हूँ, ये देखो तो क्या होगा, ये समझो जरा, जहन में है नहीं बिफोर इमेज, इसका नाम कुछ और होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि इसने पिछली स्टेट को कहीं रखा था, प्रीवियस इमेज को कहीं रखा हुआ है अपने पास मेमोरी में। जब मैं इसको अनडू करता हूँ, चेक करना अनडू, ये देखो पिछली स्टेट आ गई, यस और नो? तो इसने क्या यस किया सर। है, इसने प्रीवियस इमेज को, चलो यूं कह लो, प्रीवियस इमेज को लाके डाला है, प्रीवियस स्टेट को लाके डाला है। अब मैंने कहा ओहो मुझे रोल फॉरवर्ड करना है यार, मुझे आगे दोबारा जाना है, मैं दोबारा सारे काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बटन दबाऊंगा, ताकि ये जो आफ्टर इमेज था, अब याद आ रहा है आफ्टर इमेज जो बाद में किया था और हम अंडू कर गए थे, देखो क्या करेगा, क्लिक किया, ये देखो बेटा ये अब फिर बोल्ड हो गया। मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि सिलेक्ट करूं, जाऊं जाके इधर से इसको बोल्ड कर दबाऊं, नहीं मैं सिर्फ इसको अनडू और रीडू से खेल रहा हूँ। तो प्रीवियस और फॉरवर्ड स्टेज लेकर आता है मेरे पास। अब बताओ समझ में आता है? यस सर। यस सर। So now guys, this is all about your course. There is only one lecture remaining और वो मैं आपको अब भेज दूंगा, आप मुझसे सवाल कर सकेंगे। And there is about the relational algebra, अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोगों ने किया था, कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। आपने रिलेशनल अलजेब्रा, व्हाई यू विल हैव टू स्टडी दैट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल, जस्ट लाइक द मैथमेटिक्स, एंड यू हैव ऑलरेडी seen how to write the command. So behind every SQL command, there is some mathematics, some logic, and then that mathematic, that logic is being done in the relational algebra. How to, for example, in some case, we take the common values from a table, from two tables. So it is just like two sets, and we are taking the intersection of it. You will find that there is intersection, union, cross product, select. So, in fact, few commands you will study in your exams. There will be 5 marks commands of the relational algebra. यानी ये सॉलिड मार्क्स हैं सीक्वल के और रिलेशनल के, क्योंकि आपने माशाल्लाह यू हैव क्रिएटेड टेबल, यू हैव क्रिएटेड फॉर्म्स, क्वेरीज, डिजाइन और वो रिपोर्ट्स, so you are good in it. You have created relationship, referential integrity, you know about the ERD, EERD. But now the thing is, in fact, what I want, you should apply these theoretical things. आप बैठ कर मैथ्स की तरह से करके देखें, and you should enjoy writing the commands. तो ये मैं आपको एक भेजूंगा, ये थोड़ा सा हम रह गए, अगर आप, क्योंकि आपके एग्जाम्स 2 दिन लेट हुए हैं। If you want to take a class on Monday, it is okay, but I will send it before Monday so that you may watch all that and then you may tell me कि सर हमने दोबारा में आके बता दें, तो मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, ठीक है? Now the main thing is your project is complete since Monday. मुझे पता है कुछ लड़कों ने कहा था, few said कि सर हमारे इशू हैं, घर में बीमारी है, and I accept all the valid reasons। अगर कोई घर में बीमार है, कोई परेशानी है, तो मान लेते हैं कि ठीक है, जेन्युइन रीजन हैं, आजकल लोग बीमार ज़्यादा हैं, पेरेंट्स ज़्यादा बीमार हैं, कोई भी, तो हम उसको आसानी देने के लिए हमने लेट किया है। अब ये आपका आज रात 11:55 तक का टाइम है, आपने आज का लेक्चर का होमवर्क बनाना है जल्दी से, उसी उन्हीं नोट्स को देख के
और इसके फ़ौरन बाद आपने अपने प्रोजेक्ट को फाइनल, जिसने भी जो कुछ उसमें शशके वशके डालने हैं डाल लो, ताकि उसके बाद ये नहीं कहना। और मैंने इसीलिए इसको लेट किया था मंडे से, जब मुझे लड़कों ने कहना शुरू किया सर मैं 2 दिन बाद, तो मुझे ये हुआ कि अब हर लड़का कहेगा अगर मुझे 2 दिन और मिलते तो मैं तो टैंक बना देता। तो मैंने सबके साथ एक सा सलूक किया कि यार ठीक है, हर क्लास हर सेक्शन को लेट करते हैं। और अब मैंने जान के मंडे से थर्सडे तक बात आ गई है। इसके बाद अगर आप जमा कराएंगे तो फिर थोड़ा सा आपके लिए भी एम्बैरसिंग होना चाहिए, और मुझे भी हक होगा कि मैं उसमें से मार्क्स डिडक्ट करूंगा। ये आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है, लेट सबमिशन में नंबर 0 होते जाते हैं। तो आज इसको जमा कराइए, पेपर्स के बारे में ख्याल रखें। और मेरा अपना ईमान तो ये, आई डोंट नो हाउ यू फील लाइक that if you have write down or if you have written all the notes, take my words, it will take you 2 to 3 days. आप आज बैठ जाएं, संडे को आप मुस्कुरा रहे होंगे यार मेरी तो तैयारी हो गई। तो प्लीज़ डू इट। पीछे नहीं हटना है कि सर मेरे यूं हो गया था, जो हो गया। उसके बारे में हम नहीं कर सकते कि मेरी 5 क्लासें मिस हुई थी। मेरा जाओ, जाके पढ़ो, दोस्तों से नोट्स लो, एंड बी रेडी फॉर दिस कि मुझे अपनी क्लास के ग्रेड्स अच्छे चाहिए। नकल से इसलिए बचना, अपने सीनियर से पूछ लेना कि भाईजान आप तो कह रहे थे पेपर बड़ा अच्छा हुआ है, सी क्यों आया है। इंशाल्लाह ही विल टेल यू कि यार मैंने नकल की थी और मेरी नकल फलाने और फलाने और फलाने के साथ मैच हुई, या मेरी नकल बुक के साथ मैच हुई, या मेरी नकल इंटरनेट के साथ मैच हुई, तो यार मेरा फिर सी आया। आता तो ए, अगर मैं खुद मेहनत करता तो पेपर इतना आसान था, मैं बी भी ले लेता। नकल की थी तो हम तीनों लड़कों के सी, और मेरे सी आते हैं। कि बाकी टीचर्स कहते हैं सबके ए हैं, ए आ नहीं सकते। मतलब ये हर लड़का एक लेवल का तो है नहीं, और हर लड़के ने एक सी मेहनत भी नहीं की। तो फ़र्क होता है, और फ़र्क मैं आपको जब पेपर दिखाऊंगा इंशाल्लाह तो आप खुद ही कहेंगे यार बस गलती हुई थी। तो गलती नहीं करनी, पहले से बता रहा हूँ। बी रेडी फॉर दिस दैट यू कैन प्रिपेयर, टेक माई वर्ड, यू कैन प्रिपेयर। अल्लाह ने तुम पे इतना करम किया, पहले 3 दिन थे अब 5 दिन है, बुध पे चला गया है खुद ब खुद डेट शीट। तो अब रगड़े लगा दो, पट्टे बांध दो, और बता दो कि जनाब चक दे पट्टे, और पता चले कि हाँ जी इन बच्चों की डेटाबेस स्ट्रॉन्ग है। गॉट मी और नॉट। आज आपके जी अपलोड हो, सर। राइट, आज आपके अपलोड हो जाएंगे लेक्चर, ये वाले आज वाला भी। तो लिहाजा अपना काम मुकम्मल कीजिए और बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठना है पेपर में, कोशिश करनी है। इन्होंने फिर बड़ी गलती की है, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, और मैं वाकई में शर्मिंदा हो रहा हूँ कि यार हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह क्यों नहीं है। मतलब मैं बिल्कुल बहुत शर्मिंदा हूँ। हर यूनिवर्सिटी 3 घंटे का पेपर रखती है और 3 घंटे 1 मिनट के ऊपर जूता लगाती है। और हैरत ये है कि उनके बच्चे भी बहुत जगहों से आते हैं, दूर दूर से आए होते हैं। उनके इलाके भी बड़े अजीबो गरीब से हैं जहाँ पे बिजली सिग्नल्स का इशू है। पता नहीं वो कैसे मैंने खुद पेपर दिए 3 बजे, कैसे वो 3 घंटों में कैसे जमा कराते हैं। हमारे यहाँ हम खुद आपकी आदतें बिगाड़ रहे हैं कि आप इत्मीनान से एक लड़का पेपर करे, दूसरा उसे कॉपी कराए, फिर वो दो मिलकर तीसरे को हाई का हाथ पकड़े उसे कराएं। ये हमारी गलती है। तो मुझे खुशी होगी, टाइम स्टैम्प मेरे पास आ रहा होता है, मुझे पता चल रहा होता है कि किस लड़के ने पहले किया है। फिर जो वो नकल कराता है तो उस लड़के ने बेशक पहले किया हो, उसका मैं 0 लगाता हूँ, उसको बता देता हूँ कि तुमने ये कॉपी करवाई थी और ये तुम फंस चुके हो मेरे हाथों। तो ये पूछ लेना सीनियर से, ताकि तुम्हारे जहन में गुमान ना रहे। जो बच गया वो अल्लाह की तरफ से, लेकिन मैं अपनी पूरी टिल लगाऊंगा आखिर तक कि मैं तुम्हें पकड़ूँ, और मैं पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। तो कोशिश ये करो, पढ़ो, अच्छे नंबरों से पास हो। कल को मार्केट में जाओ तो तुम्हें ये ना कहें कि ए कैसे लिया था नकल करके। ये बड़ी बेइज्जती और झूठा होता है कि ए भी आया हुआ हो और साथ में नकल भी हो और आपको आता भी कुछ ना हो। ठीक है, तो अच्छी से तैयारी करो, मुझे तुम लोगों पे यकीन है। तुमसे पहले सीनियर में भी ये बात नहीं है कि सारे फेल थे, कुछ शरारती लड़के थे, उनमें से अक्सरियत के एज थे। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि F18 के बैच बहुत शानदार गया। दे वर्क वेरी हार्ड। उनके प्रोजेक्ट्स देखने वाले, उनके पेपर्स में जो केस स्टडी का मैं भी आपको आज भेजूंगा, आपको उसका एक पूरा छोटा सा क्या कहते हैं उसको हम, टेम्पलेट, और आप उसको देखना, आपको पता चल जाएगा यार मैं इतना ज़्यादा काम तो मैं अकेले ही बैठ के कर लूँगा। तो ख्याल रखना जितना आप लेट जमा कराएंगे, बेशक आपकी बिजली है या नहीं है, अगर बिजली नहीं है तो आपकी कॉपी भी नहीं होनी चाहिए। काम आपने खुद किया। जो सेंटर्स खुल रहे हैं ना, हमारे अपने सीनियर्स कहते हैं ला यार इतने पैसे दे पेपर करा दूंगा। बेटा वो आपको भी हराम खिला रहे हैं और खुद भी हराम खा रहे हैं। आपका हराम का कमाया हुआ ग्रेड पूरी जिंदगी आपके बीवी बच्चों को हराम खिलाएगा, ये समझ लेना।
अगर समझ में आ गया तो ये 5 दिन बहुत ज़्यादा है पढ़ने को। नोट्स हैं या नहीं है तुम्हारे पास? है सर। तो बस बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाओ। अल्लाह ताला मैंने पढ़ा दी है, अगर मैंने कुछ नहीं पढ़ा तो नोट्स तो है ही हैं, तो मैं बस अब शुरू करता हूँ। तुम्हारे पास तमाम नोट्स, तमाम लेक्चर्स और अपलोडेड हैं, उधर पहुँच जाया करो। सीक्वल पढ़ो, रिलेशनल जबरा पढ़ो, बाकी सब कुछ पढ़ो। इंशाल्लाह यू विल फाइंड कि तुम्हारा कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें ना आता हो, इंशाल्लाह ऐसा ही है। ठीक है, वक्त पे जमा कराओ, 3 घंटे के बाद कहानी बता दो कि सर मैंने कर दिया। इससे खूबसूरत बात नहीं होगी। मैं चेंज लाना चाहता हूँ कि हम हमेशा तकरीरें करते हैं ईमानदारी, सच बोलना, और जब अमल का वक्त आता है तो हम सबसे पहले उल्टा काम करते हैं। तो साबित करो कि सर मैंने 3 घंटे में करके दे दिया था, और उसके बाद मैंने किसी लड़के का फ़ोन नहीं उठाया, ना किसी की हेल्प की है। आप चेक कर सकते हैं, मेरा पेपर किसी और से नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला देख रहा है, हम नहीं देख रहा है। तो हज़रत उमर वाला वाक़या याद है ना, जो बच्ची की माँ कह रही थी पानी मिला दो दूध में, तो बच्ची ने कहा कि क्यों? तो उसने कहा कोई कोई देख लेगा। उसने कोई नहीं देख रहा। तो बच्ची ने कहा था कि अल्लाह तो देख रहा है। और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर सुन रहे थे। यहाँ तक की कहानी सबको पता है। इसके बाद की कहानी किसी को पता है? वो मैंने अभी कंफर्म करनी है, मैंने किसी एक उसमें सुनी है बयान में, तो मैं चाहता हूँ पहले मैं कंफर्म कर, लेकर पूछना चाहता हूँ किसी को पता है इसके बाद क्या हुआ था फिर? यस सर। क्या? यही हुआ था ना कि उन्होंने कहा था कि कोई नहीं देख रहा, तो फिर उसके बाद इसके बाद क्या हुआ था जब सैयदना उमर बड़े खुश हुए, जो कुछ भी हुआ, उसके बाद क्या हुआ? हमें इधर तक ही पता है कि उन्होंने कहा था कि अल्लाह देख बस रहा ये है। कहानी आदि है, और इसके बाद की कहानी ये है। अब मैं इसको कंफर्म करूंगा, प्लीज ये आगे शेयर मत करना, लेकिन क्योंकि मैंने रिलायबल किसी बयान वाले से सुनी है, तो मैं इसको दोबारा सुनना चाहता हूँ किसी किताब से पढ़ के, यानी जो ये यूट्यूब पे मुझे यकीन नहीं है। लेकिन वो बात ये थी कि सैयदना उमर जब घर गए, उन्होंने कुछ सोचा और अपने एक बेटे की शादी उस लड़की से की कि ये लड़की गरीब तो बहुत है, लेकिन इसको अल्लाह का खौफ है। और मज़ेदार बात जो बहुत डिफरेंट है वो ये है कि फिर उस लड़की से जो बेटा हुआ वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज थे, जिनको बाज़ लोग पांचवा खलीफा कहते हैं। ऑल्दो पांचवी खिलाफत हज़रत इमाम हुसैन के पास आई थी, लेकिन वो 6 महीने बिल्कुल ऐसे है सर। तो हज़रत जो उमर बिन अब्दुल अजीज थे, उनका ज़माना अदलो इंसाफ और इस्लाम की सरबुलंदी का ज़माना रहा है। तो अब ज़रा मुझे ये बताओ कि किसी ने वाक़या सुना है कि नहीं, या सिर्फ मैंने ही यस सुना है ये? ये जी सुना सर। सुना सुना है? भी है। तो देखो, हम छोटे यस सुना। बच्चों को सिर्फ ये सुनाते थे ना कि उस बच्ची ने ये कहा, सैयदना उमर बहुत खुश हुए। नहीं भाई, ये कहानी आगे है। इसने हमारे इस्लाम की तारीख बदली थी एक सच ने। उस बच्ची ने सच बोला, फिर वो एक माँ बनी, वो सच्ची माँ थी। उसकी औलाद वो थी जिसने नथ डाल दी थी कुफार को, और मुसलमानों के लिए बेहतरीन थे। तो थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाओ बच्चों, तुम बड़े हो रहे हो। सच को समझो, चीटिंग को समझो, कोशिश करो। ग्रेड बुरा आ रहा है, थोड़ा सा आने दो। तुम्हें ये तो एहसास रहेगा ना यार कि मैं नालायक हो रहा हूँ, मुझे पढ़ना पड़ेगा। अगर एज आते रहे तो फिर ख्याल रखा तुम्हें कभी अपने आप को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये नहीं कह रहा हूँ फेल हो जाओ, मेहनत करो, मेहनत करो, ये आएगा। तो चलो अब भागो सारे में, अगली क्लास शुरू हो गई है, 10 बज गए हैं। कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, आखिरी क्लास है। मुझसे कोई सख्ती हुई हो, कोई बदतमीजी हुई हो तो माजरत, लेकिन उस्ताद बाप होने के नाते सब बदतमीजियां करने का हक रखता है। सर आप हमें इसके बाद भी कोई कोर्स पढ़ाएंगे? सर अगर कोई और कोर्स की बात बाद में होगी, मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, बस ये डेटाबेस काफी होता है। तू चाह रहा है कि तू जो है ना मुझसे सारे कोर्स पढ़े, है ना? जी सर पढ़ना है नहीं तो सर, ये एक आता बाकी है। सर मैं सिर्फ नहीं चाह रहा, बाकी क्लास भी चाह रही है। तू अकेला नहीं चाह सर रहा, एक सबसे आधा ज्यादा कोर्स तो पढ़ा दे। सर एक रात तक आधा कर लें सर। आधा नहीं क्या? होता, पूरा ही होगा। रात तक क्या सर करने, सर क्या कह हेल्प रही ही है? कर दे। सर एक दो क्लासेस में हेल्प कर दे, लेकिन आ जाए जरूर सर। एक आधा कोर्स होता है तुम लोगों का, वो मैं देखूंगा और इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, लेकिन वादा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बेटा वो प्यार होता है, फिर बाकी सेक्शन नाराज होते हैं कि आपने हमें नहीं। लेकिन इस दफ़ा अच्छा चल रहा है, सेक्शन ही 3 है, तो मैं इंशाल्लाह तीनों को पढ़ा दूंगा। तो वो HCI होगा, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, और या फिर कंप्यूटर एथिक्स। तो मेरा ख्याल है HCI बेहतरीन कोर्स है, उसमें आप लोग जॉब कर सकते हैं। तो मैं डेटाबेस और HCI वगैरह इसलिए पढ़ाता हूँ कि ये फील्ड्स हैं जहाँ पे नौकरी मिलती है। तो बस आज के लिए ये है कि इंशाल्लाह यहाँ पे इसको छोड़ते हैं। बाकी अपना ख्याल रखो, पेरेंट्स का ख्याल रखो। अल्लाह ताला पेरेंट्स की खिदमत करने में तुम्हें कामयाबियाँ देगा। और आखिरी चीज़ ये है कि हजरात,
अपनी तमाम जो समर आ रहा है ना, इसमें 3 से 4 डेटाबेसेस बनाकर रख दो, कोई सी भी अपनी मर्जी की, और इसी एक्सेस को यूज करते हुए यूट्यूब पे जाओ और तुम हंस पड़ोगे कि सर ने हमें फुद्दू लगाया है, सीक्वल सर्वर तो बहुत आसान था। लेकिन बेटा जब आप नए नए आते हैं ना एफएससी से, तो मुझे उन बच्चों को देखना होता है कि वो बच्चे हमसे पीछे ना रह जाएं। तो आपको एक्सेस पढ़ाया, हर बच्चे को आ गया। अब जब आप यूट्यूब पढ़ोगे तो आप हंस पड़ोगे कि यार सर ने मजाक किया था, सीक्वल सर्वर ही पढ़ा देते, लेकिन अगर मैं वो पढ़ाता तो वो आता नहीं। अब इंशाल्लाह आपको मजा आएगा कि आप खुद टेबल्स क्रिएट करोगे, सीक्वल सर्वर में प्राइमरी कीज बनाओगे, रिलेशनशिप बनाओगे और आप इंजॉय करना शुरू करोगे। ठीक हो गया? ठीक होगा। यस थैंक यू सर। बस अपना बहुत ख्याल रखो और अल्लाह ताला कामयाबियां दे, और मुझे भी दुआओं में याद रखो। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।